Hello students. This is lecture 4 of surface chemistry. In the last lecture, we were talking about Freundlich adsorption isotherm. Let me remind you what Freundlich adsorption isotherm is. Freundlich is actually the name of a scientist who studied the adsorption at constant temperature. ठीक है? At constant temperature against pressure. Constant temperature versus pressure. This particular uh, study is named after the scientist Freundlich adsorption isotherm. But this man gave us the idea. What was the formula? Formula for was x over m is directly proportional to p raised to the power 1 upon n. Here x is amount of adsorbate, m is the amount of adsorbent, and n the value for the n is greater than 0. It may be 1, 2, 3, and it may lead to the infinity also, but it cannot be 0. Okay, then if I take the log both sides, then we derived this equation in the last lecture also, that log of x over m is equal to log k plus 1 over n log p. Okay, here k is the constant of proportionality and 1 over n will be the slope of the line. If you plot the graph between log of x over m and log p, okay, means if you compare this equation from the straight line equation, what you find is y is equal to mx plus c. Means y axis पे you will draw log xm, on the x axis you will draw log p, then slope of the line is going to be 1 upon n, and here log k is going to be the constant of proportionality. If you take care of this graph, then you will come to this final conclusion that this particular value is equal to log k, and the slope of this line is going to be 1 upon n, right? Here what we have done in the previous lecture includes that if n is equal to 1, then putting the value in this, then I will have x over m is directly proportional to p. It means as the pressure increases, adsorption will increase. But what happens when the value for n is infinity? Math states that 1 upon infinity is equal to 0. Then putting this value in the equation 1, what I will have is x over m is directly proportional to p raised to the power 1 upon infinity, or I can say x over m is directly proportional to p raised to the power 0. And I know that p raised to the power is 0. It means that whatever is the amount of pressure, whatever the value you will put here for the pressure, then it will always be equal to constant. It will not change. Means if I plot adsorption on the y-axis and pressure on the x-axis, then according to this, adsorption increases when you increase the pressure. Means the graph is going to be a straight line like this. Okay, and after some time, whatever you put the value of pressure here, it will always be equal to constant. Means after a certain stage, this graph will be parallel to the pressure axis, and there will be a very small range where x over m will be directly proportional to p raised to the power 1 upon n. We have done this particular topic in the previous lecture also. Today what we will study is लिमिटेशन ऑफ फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म. ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? लिमिटेशन ऑफ फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म. द बिगेस्ट लिमिटेशन फॉर दिस इज दैट वैलिड ओवर अ नैरो रेंज. Valid over a narrow range of pressure. Okay, experimentally what we found is this particular equation gives us idea that the graph is going to be a straight line. What we have done here, okay, I'm talking about this equation. Log of x over m is equal to log k plus 1 upon n log p. This particular equation is giving you idea that graph is going to be always a straight line. But experimentally what we found is that when the value of the pressure is very high, okay, when the value of the pressure is very high at that particular movement, then at
high pressure graph was not linear. What it clearly indicates that this theorem fails at high pressure, means Freundlich adsorption isotherm fails at high pressure. ठीक है, it fails at high pressure. देखो theoretically तो ये straight line ही आना चाहिए, but ये जो चीज हमने limitation जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये experimental result है. Theoretically we cannot explain this. ठीक है, but हाँ, अगर आप इसकी second limitation को जो है देखेंगे तो शायद आप वहां से explain कर सके कि Freundlich adsorption isotherm consider adsorption as multi-layered. Multi-layered कब possible था? Multi-layered is possible only when adsorption we are dealing with is physical adsorption, means only and only it talks about only and only physical adsorption. केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में ये हमें कुछ भी नहीं आइडिया दे रहा. तो ये फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की दो लिमिटेशंस हैं कि पहला कि वो हाई प्रेशर्स पर फेल कर जाता है, दूसरा कि वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एडजॉर्प्शन के बारे में ही बात करता है. ठीक है, यहाँ पर फ्रेंडलिच ने एडजॉर्प्शन को स्टडी किया अगेंस्ट प्रेशर, मींस उसने क्या लिया, उसने जो है एक गैस ली, लेकिन यहां पर आप एडजॉर्प्शन सॉल्यूशन के लिए भी निकाल सकते हैं. एडजॉर्प्शन फॉर सॉल्यूशन, फॉर सॉल्यूशन इट क्लियरली मींस कि शायद हम कहीं लिक्विड स्टेट में लेके चलेंगे. अगर हम लिक्विड स्टेट में लेके चल रहे हैं तो सॉल्यूशन के लिए व्हाट मैटर्ड फॉर मी इज द कंसंट्रेशन. प्रेशर किसके लिए हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है? गैसेस के लिए. और जब सॉल्यूशन आता है तो हम प्रेशर की बात नहीं करते, हम किसकी बात करते हैं? कंसंट्रेशन की बात करते हैं. तो जो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, आप उसमें जहां P है, P को रिप्लेस कर दो किससे? C से. तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बी योर फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म फॉर द सॉल्यूशन. ठीक है, it will be Freundlich adsorption isotherm for the solution. अब यहां पर C क्या इंडिकेट करता है? C indicates concentration of solution. जैसे हमने यहां प्रेशर के लिए एक इक्वेशन निकाली थी, ऐसे ही हम यहां पर भी क्या कर सकते हैं? log of x over m is equal to log k plus 1 over n log c. मतलब जहां पर आपने अब तक क्या पुट कर रहे थे, आप अब तक प्रेशर पुट कर रहे थे, वहां पर मैं क्या पुट करना शुरू कर दूंगा? कंसंट्रेशन पुट करना शुरू कर दूंगा. तो वो किसके लिए हो जाएगा मेरे पास? वो हो जाएगा सॉल्यूशन के लिए. सो दिस इज अबाउट योर फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म. लेकिन लेट मी रिमाइंड यू हियर दैट फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज नॉट द अल्टीमेट वन. इट हैज सर्टेन लिमिटेशंस, और उन लिमिटेशंस को ठीक किया था लैंगमीर ने. लैंगमीर के बारे में हमारा सिलेबस जो है कुछ बात नहीं करता. ठीक है, तो चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं. व्हेन आई मूव ऑन, आई एम कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ एडजॉर्प्शन. लास्ट टॉपिक क्या कहता है? लास्ट टॉपिक कहता है एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन. वेरी इजी, और हमारे पास बहुत हद तक चांस होता है कि यहाँ एक एप्लीकेशन से क्वेश्चन हमें मिल जाए. ठीक है, सो डोंट मिस अ सिंगल एप्लीकेशन. ऑल द एप्लीकेशंस आर इंपॉर्टेंट. वी विल टॉक अबाउट एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन. ठीक है, एडजॉर्प्शन की एप्लीकेशन क्या है? सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो है टू क्रिएट वैक्यूम.
कि कहीं पर अगर मुझे वैक्यूम क्रिएट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वहां पर एडजॉर्प्शन को स्टडी कर सकता हूँ। व्हाट कैन आई डू, आई कैन स्टडी एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन की हेल्प से मैं वैक्यूम जनरेट कर सकता हूँ। कैसे, देखो आप क्या करो, एक कंटेनर ले लो, इस कंटेनर के अंदर बहुत सारे गैसेस है सपोज करो, तो आपने यहाँ पर क्या रख दिया, एडजॉर्बेंट रख दिया। एडजॉर्बेंट क्या करेगा, गैस के जो मॉलिक्यूल्स है, लेट में से ए है, ए को अपने सरफेस पर चिपका लेगा। तो जब अपने सरफेस पर चिपका लेगा तो कंटेनर के अंदर से गैसेस क्या कर जाएंगी, प्रेशर को खत्म कर देंगी, प्रेशर जीरो कर देंगे। उसके बाद आप एडजॉर्बेंट को निकाल लो बाहर, तो इसके अंदर क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम बच जाएगा। यानी कि जब भी हमें वैक्यूम बनाने की जरूरत होती है, वैक्यूम होता क्या है, जहां पर कोई भी गैसेस अवेलेबल ना हो। अगर आपको वैक्यूम करना है तो आप क्या करो, वहां पर एक एडजॉर्बेंट लगा दो ताकि वो सारी गैसेस को क्या कर जाएं, एडजॉर्ब करा जाए। ठीक है, आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस से बचने के लिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइन भी दी है क्या, कि आप जब भी बाहर निकलेंगे तो गैस मास्क लगा कर रखेंगे। तो ये भी जो गैस मास्क होते हैं वो किसके बेसिस पर काम करते हैं, वो काम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या होता है, देखो गैस मास्क की दो लेयर्स होती हैं, उन दोनों लेयर्स के बीच में हम लोग एक एडजॉर्बेंट को भर देते हैं। उस एडजॉर्बेंट का काम क्या होता है कि जब हम सांस लेंगे तो एयर जब अंदर जाएगी तो उसमें से वो गैस जो पॉइजनस है वो उसको अपने सरफेस पर एडजॉर्ब करा ले। अब क्योंकि वो पहली लेयर में ही जो है उसने गैस को एडजॉर्ब करा लेगा, तो वो फर्दर हमारे माउथ तक या नोज तक जो है उस पॉइजनस गैस को नहीं पहुंचने देगा या पॉइजनस पार्टिकल को नहीं पहुंचने देगा। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, हम गैस मास्क में भी इसका यूज करते हैं, एडजॉर्प्शन का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास कुछ टेक्निक होती है, टेक्निक्स ऑफ प्योरिफिकेशन, टेक्निक्स ऑफ प्योरिफिकेशन। इसमें भी मेरे पास कई टेक्निक्स है, जैसे कि क्रोमेटोग्राफी है, क्रोमेटोग्राफी उसका भी प्रिंसिपल क्या है, एडजॉर्प्शन है। ऐसे ही हमारे पास जो है दूसरा आता है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस करके आता है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एडजॉर्प्शन का यूज करते हैं। ऐसे ही अगर मान लो कहीं से आपको वाटर को रिमूव कराना है, अच्छा पहला माइंड में क्वेश्चन जाएगा कि भाई ये टेक्निक्स क्या हैं। तो जब आप जनरल आइसोलेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर ये दोनों टेक्निक्स आप वहां पर करने वाले हैं, तो नो नीड्स टू वरी एनीथिंग अबाउट। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अगर हम देखें हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, कैटालिसिस उसके अंदर भी क्या करते हैं, एडजॉर्प्शन का ही यूज किया जाता है। लेकिन हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है क्या, वो हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है। ठीक है, तो उसको हम अब इसके बाद वही डील करेंगे और डिटेल में स्टडी करेंगे। ऐसे ही देखो, जैसे यहाँ पर वैक्यूम जनरेट करने के लिए आपने गैसेस को हटाया, गैस मास्क में भी क्या हुआ कि वो गैस को हटा रहा है। ऐसे ही कहीं से अगर मान लो आपको वाटर रिमूव करना है, टू रिमूव वाटर, ठीक है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, एडजॉर्प्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको एक ऐसा एडजॉर्बेंट सिलेक्ट करना है जो पानी को अपने सरफेस पर चिपका ले। जैसे एग्जाम्पल है इसका सिलिका जेल, सिलिका जेल। सिलिका जेल भी एक ऐसी चीज है जो क्या करती है, वाटर को अपने सरफेस पर चिपका लेती है। मूविंग ऑन, कि देखो एक होता है, जैसे पानीपत क्या है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या होता है, कपड़ों को डाई की जाती है। ठीक है, तो डाई जो होता है, डाई में भी क्या होता है, एडजॉर्प्शन का इस्तेमाल होता है, कि मतलब जो कलर वाला कंपोनेंट है उसको हम एक कंटेनर में डाल देते हैं, उसके बाद एक कपड़ा डालते हैं, तो कपड़े के ऊपर क्या होता है, बाहर की तरफ एक एक लेयर आ जाती है कलर की।
अगर मैं आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछूं कि कपड़ों का कलर क्यों फेड हो जाता है, क्योंकि जो ऊपर वाली लेयर है वो धीरे धीरे खराब हो जाती है, तो लास्ट में कपड़ा क्या निकल आएगा, व्हाइट निकल आएगा। ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन से ही आप कपड़ों को डाई भी करते हैं। यहाँ तक कि जो पेंट इंडस्ट्री है, ठीक है, पेंट इंडस्ट्री, उसके अंदर भी किसका यूज किया जाता है, एड्सॉर्प्शन का यूज किया जाता है। आप कहोगे सर इसके अंदर कैसे? देखो, पेंट के अंदर आप जब हम घरों में पेंट कराते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि कहीं पर उस पेंट के अंदर हवा ना आ जाए, क्योंकि अगर हवा आ गई तो वहां से पेंट में बबल्स बन जाएंगे और पेंट अच्छे से नहीं चिपकेगा। ये प्रॉब्लम तो तब भी आ सकती है जब पेंट के डब्बे में पेंट भरा जाता है, तो कुछ हवा मिक्स हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, जब हम पेंट को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं तो वहां पर कुछ ऐसी चीजें मिक्स कर दी जाती हैं जो क्या करे, जो उस पेंट में से गैस को एड्सॉर्ब करा ले। ठीक है, जैसे ही गैसेस निकल जाएंगी वहां से, तो ऐसे पेंट को जब आप अप्लाई करेंगे वॉल्स के ऊपर तो वो बहुत अच्छे से चिपक जाएगा। देखो, किसी भी एप्लीकेशन को आप उठाओ, सीधा सीधा पर्पज ये है कि कौन किसको कितने अच्छे से चिपका सकता है। ठीक है, क्योंकि जितने अच्छे से चिपकाएगा एटमॉस्फेयर से वो चीजें उतनी ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट योर एड्सॉर्प्शन। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है वो आ जाता है कैटालिसिस। बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा टॉपिक है कैटालिसिस। कैटालिसिस क्या होता है, देखें, आपने एक वर्ड पढ़ा है लोअर क्लास से जिसको आप लोग बोलते हो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक सब्सटेंस होता है। कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस which change the rate of reaction। जो क्या कर दे, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर दे। अब यहां पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? तो देखो, इसका एक बड़ा सिंपल सा मैं जवाब दे देता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है हाउ फास्ट और हाउ स्लो अ रिएक्शन टेक्स प्लेस, कि वो कितनी जल्दी या कितनी देर से क्या कर रही है, कितनी देर से वो रिएक्शन को खत्म हो पा रही है, वही क्या हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन। मान लो एक रिएक्शन ऐसी है जो 10 मिनट में खत्म हुई, उसके अल्टरनेट एक रिएक्शन ऐसी है जो 5 मिनट में खत्म हो गई। जो जल्दी खत्म हो गई वो मेरे लिए क्या है, फास्ट रिएक्शन है, और जो ज्यादा टाइम में खत्म हो रही है वो क्या है, स्लो रिएक्शन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब है कि कितनी जल्दी, कितने कम टाइम में कोई रिएक्शन खत्म हो रही है, वो हो जाती है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट क्या होते हैं, एक कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं, या तो उसको बढ़ा देंगे या फिर उसको घटा देंगे। दोनों ही केसेस पॉसिबल हैं। ठीक है, कैसे काम करता है उसके बारे में भी बात करेंगे। और कैटालिसिस क्या है? कैटालिसिस इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ रेट बाय कैटलिस्ट। कि कैटलिस्ट का यूज करके आप जब रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटालिसिस बोलते हैं। देखो, एक सिंपल सा मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दे देता हूँ कैटालिसिस का, कि आपने डेली लाइफ में कर्ड जो है ना, वो कभी ना कभी देखा होगा प्रोसेस, मिल्क को कर्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, मिल्क को कर्ड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखो क्या होता है, होता ये है कि मिल्क के अंदर ऑलरेडी वो बैक्टीरिया होता है जो उसको कर्ड में कन्वर्ट कर सकता है, ऑलरेडी होता है नेचुरली। लेकिन ये जो प्रोसेस है जिसमें वो बैक्टीरिया रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है, वो प्रोसेस बहुत स्लो होता है। तो हम क्या करते हैं, हम दूध के अंदर कोई दही या लस्सी डाल देते हैं, जिससे वो रिएक्शन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के काम करने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो
इसमें लस्सी किसका काम कर रही है? कैटलिस्ट का काम कर रही है। तो कैटलिस्ट क्या हुआ? रेट ऑफ रिएक्शन को जो चेंज कर दे, क्योंकि चेंज की बात कह रहे हैं तो यहाँ पर हम कैटलिस्ट को कहते हैं कि भाई एक ऐसा है जिसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या होगा? पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दे? बढ़ा दे। रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने का मतलब हुआ कि भाई कम टाइम में करवा दे। वो क्या होगा? पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा। ऐसे ही हमारे पास होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है? विच डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दे? कम कर दे। यानी कि जो रिएक्शन पहले 10 मिनट में हो रही थी अब 10 मिनट से ज्यादा समय लगे, जो है टाइम उसको लगने वाला है खत्म होने में, तो वो क्या होता है? नेगेटिव कैटलिस्ट होता है। यहाँ पर दो टर्म्स और मैं लगे हाथ सीख लेता हूँ। एक होता है प्रोमोटर। प्रोमोटर, प्रोमोटर क्या होता है? प्रोमोटर इज एक्चुअली द substance which increase the activity of catalyst, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को क्या कर दे? बढ़ा दे। ठीक है, मतलब कैटलिस्ट को भी एक्टिवेट कर दे कि भाई जल्दी से वो क्या कर दे? रिएक्ट कर दे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं प्रोमोटर। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है? पॉइजन होता है। पॉइजन, पॉइजन क्या होता है? पॉइजन होता है सब्सटेंस विच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉइजन बोलेंगे। ठीक है, हम आगे जब डील करेंगे तो वहां पर बताएंगे कि ये प्रमोटर है जी और ये पॉइजन है, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको शब्द बता रहा हूँ कि ये ऐसे ऐसे शब्द हैं, तो आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगर बात करें कि कैटलिस्ट ऐसा करता क्या है जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाता है, तो देखें केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हमने एक बात सीखी, और वो ये क्या सीखी कि इस एक्सिस पर हम क्या लेते हैं? एनर्जी लेते हैं, और इस एक्सिस पर हम लोग क्या लेते हैं? रिएक्शन कोऑर्डिनेट। रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब कि एक रेट ऑफ रिएक्शन पर बहुत सारी चीजों का फर्क पड़ता है। ठीक है, लेट मी टेल यू अगेन, रेट ऑफ रिएक्शन पर बहुत सारी चीजों का फर्क पड़ता है। तो वो सब चीजें इंक्लूडिंग फैक्टर में मैंने कहा ले ली? नीचे की तरफ ले ली। तो यहाँ पर देखें कि रिएक्टेंट की एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, और प्रोडक्ट की एनर्जी हम मोस्ट ऑफ द टाइम मान के चलते हैं कि वो कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। आई रिपीट, मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, यानी कि जिसकी एनर्जी जितनी कम होगी उसमें जो है रिएक्शन होने के चांसेस उतने ही ज्यादा हो जाएंगे। तो रिएक्टेंट क्या करते हैं? रिएक्टेंट अपने आप की एनर्जी को बढ़ाते हैं पहले। ठीक है, मतलब आपको क्या करना पड़ता है? रिएक्टेंट को कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ता है। ये हम एडसोर्प्शन में भी बात कर चुके हैं कि जैसे हमारे पास एग्जांपल है NaOH प्लस HCl, दोनों आपस में स्टेबल होते हैं, लेकिन अगर आप Na पॉजिटिव OH नेगेटिव को अलग अलग कर दे, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव को अलग अलग कर दे, तो ये आपस में फर्दर रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? NaCl प्लस H2। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि आप Na पॉजिटिव को अलग करें, किससे? OH नेगेटिव को। ऐसे ही Cl नेगेटिव को अलग करें, किससे? H पॉजिटिव से। तभी तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव को अट्रैक्ट करा पाएगा। और अलग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। और ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी दी ताकि रिएक्टेंट क्या हो जाए? हाईली अनस्टेबल हो जाए। देखो ना, पॉजिटिव चार्जेस है, नेगेटिव चार्जेस है, चार्जेस आ गए तो अनस्टेबिलिटी आ गई। तो यहां से वो एक ऐसी चीज में कन्वर्ट हो गया विच इज मोर स्टेबल।
केमिस्ट्री में हम क्या कहते हैं, मिनिमम एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी, कि प्रोडक्ट की एनर्जी अगर रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो रिएक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर हुआ क्या कि आपको क्या करना पड़ता है, रिएक्टेंट को कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी ये क्या होती है, दिस इज द अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी which is to be supplied to reactants to convert into the product। ये प्रोडक्ट में वो तभी कन्वर्ट होगा जब आप उसको ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कर दोगे, दे दोगे। अगर ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको नहीं मिली तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, इट विल नॉट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। तो इस ये जो एनर्जी है जो मुझे देनी पड़ी, इस एनर्जी को मैं क्या नाम दे रहा हूं, एक्टिवेशन एनर्जी। अब आता हूं मैं बेसिक क्वेश्चन पर कि भाई देखो, रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी देनी पड़ी तब जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ये बात ठीक वैसी ही है कि यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, आपको ये एक दीवार है जो जंप करनी है। अगर ये दीवार की हाइट बहुत ज्यादा होगी, ध्यान से सुनना, अगर इस दीवार की हाइट बहुत ज्यादा होगी तो आपको जंप करके दूसरी साइड पहुंचने में उतनी ही ज्यादा तकलीफ होगी, यानी कि हाइट ऑफ दिस एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, बट आई विल से कि हायर, मैं इसको ऊपर लिखता हूं, आई वुड से कि higher the amount of activation energy slower will be the rate, क्योंकि रिएक्टेंट को जंप करके जाना मुश्किल हो जाएगा, आपको यहां से जंप करके जाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाए, कम हो जाए। एक्टिवेशन एनर्जी कम होते ही रिएक्टेंट के जंप करके दूसरी तरफ जाने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो कैटलिस्ट का काम क्या है, एक्चुअल में कैटलिस्ट चेंजेस the rate of reaction by changing activation energy, कि वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देता है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होते ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मान लो जैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या करना है, बढ़ाना है। भाई आपको पता है कि रिएक्टेंट को जंप करना पड़ेगा ताकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। अगर ये हाइट बढ़ गई, कैटलिस्ट कुछ ऐसा करे जिससे ये हाइट क्या हो जाए, जिससे ये हाइट क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि रिएक्टेंट, आपको एक 5 फीट की दीवार कूदनी है और एक 7 फीट की दीवार कूदनी है। 5 फीट की ज्यादा आसानी से कूद सकते हो कि 7 फीट की, आंसर इस 5 फीट की दीवार को कूदना हमारे लिए आसान होता है। तो यही बात हम कह रहे हैं कि अगर नेगेटिव कैटलिस्ट कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर बढ़ गई तो रिएक्टेंट के जंप करके जाने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात, तो पॉजिटिव कैटलिसिस में क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बढ़ सकता है, बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। के पहले दीवार की हाइट कितनी थी, 5 फीट थी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि कैटलिस्ट ने क्या किया,
कैटलिस्ट ने क्या किया, कैटलिस्ट ने दीवार की हाइट 5 फीट से कम कर दी, कितनी, 2 फीट। तो 5 फीट की दीवार जंप करने में तो मुश्किल हो सकती है, 2 फीट की दीवार को आप आसानी से जंप कर सकते हैं, तो यानी कि जंप करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जब भी पॉजिटिव कैटालिसिस की बात होगी, जब भी पॉजिटिव कैटालिसिस की बात होगी तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है, जब भी नेगेटिव कैटालिसिस की बात होगी तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर कैटालिसिस। कैटालिसिस में दो बड़ी छोटी सी और टर्म्स है मेरे पास, एक आती है होमोजेनियस कैटालिसिस और एक आती है हेट्रोजेनियस कैटालिसिस। विद इन 1 मिनट दिस विल बी ओवर। एक टर्म हम क्या यूज कर रहे हैं, एक टर्म हम लोग यूज कर रहे हैं पॉजिटिव कैटालिसिस, सॉरी, एक टर्म क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, होमोजेनियस कैटालिसिस। होमोजेनियस कैटालिसिस, होमोजेनियस कैटालिसिस क्या होती है, देखें कि व्हेन कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट all are in same physical state. जैसे when catalyst and reactant all, अगर वो एक फिजिकल स्टेट में है तो हम उसको क्या कहेंगे, होमोजेनियस कैटालिसिस कहेंगे। देखो मैं एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल 2SO2, ये क्या है, गैस है। 2SO2 प्लस O2 दोनों क्या है, गैसेस हैं, और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, NO, अगेन अ गैस। ठीक है, तो ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है 2SO3, अगेन गैस। मुझे प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं देना, मुझे सिर्फ क्या देना है, रिएक्टेंट पे ध्यान देना है कि रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, SO2 O2 दोनों क्या है, गैसेस हैं, NO भी क्या है, गैस है। तो यहाँ पर सेम होमोजेनियस कैटालिसिस के इथेनॉल ले लिया 2C2H5OH, ठीक है, और ये कौन सी स्टेट में होता है, ये होता है लिक्विड स्टेट के अंदर, और मैंने इसको जो है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया। कंसंट्रेटेड H2SO4 किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एज रिएक्टेंट, सॉरी एज कैटलिस्ट। तो यहां से क्या बन गया, डाई इथाइल ईथर और वाटर, यानी कि C2H5O C2H5 प्लस H। आई हैव नो इंटरेस्ट इन द फिजिकल स्टेट ऑफ डाई इथाइल ईथर एंड वाटर, लेकिन देखो इथेनॉल है लिक्विड स्टेट में, कंसंट्रेटेड H2SO4 है वो भी किसमें, लिक्विड स्टेट में। तो ये किसके एग्जांपल हुए, होमोजेनियस कैटालिसिस। ऐसे ही जो दूसरी कैटालिसिस हमारे पास आती है वो आती है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या होती है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होती है फिजिकल स्टेट इज डिफरेंट, फिजिकल स्टेट इज डिफरेंट। अगर मैं इसमें एग्जांपल लूं, ठीक है, एग्जांपल में लूं तो देखो कि हमारे पास, आपने एक क्लास 10th में रिएक्शन पढ़ी थी वनस्पति घी वनस्पति ऑयल वाला, ठीक है, बट लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ N2 प्लस 3H2 and H3। मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन क्या होती है, गैस, हाइड्रोजन क्या होती है, गैस, लेकिन Fe क्या होता है यहाँ पर, Fe होता है सॉलिड स्टेट में, क्योंकि कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट से अलग है, तो हम इसको क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी। दिस इज ऑल फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अगर आप में से किसी को डाउट है, यू कैन लीव मी कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन लीव मी